Hello everyone. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to discuss about section 64 and 65 of Indian Evidence Act. We are taking these two sections together. Reason being, it talks about that the document can be proved by way of primary evidence, and in certain exceptional cases, it can also be proved by way of secondary evidences. तो किसी भी डॉक्यूमेंट को अग्रीमेंट को आप प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव करेंगे. दिस इज द जनरल रूल एंड दिस इज समथिंग विच इज स्टेटेड इन सेक्शन 64 which talks about proof of document by primary evidence. ये बताता है कि एनी डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय वे ऑफ प्राइमरी एविडेंस. क्योंकि अगर कोई अग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में हुआ है और अगर ये कोई डॉक्यूमेंट अगर ये बताता है कि दो पार्टीज के बीच में किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर किसी स्पेसिफिक काम को लेकर अग्रीमेंट हुआ है, देन इन दोज केसेस दैट डॉक्यूमेंट दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट would fall under the definition of primary evidence, and hence that document must be proved by way of original evidence, by way of primary evidence. तो इसीलिए a document must be proved by way of primary evidence is the general rule given under section 64, but section 65 comes into picture when there comes the exception to this general rule, and that is कि in certain exceptional situations the document can also be proved, or the condition, the existence of any document can also be proved by way of secondary evidence. So in section 65, which talks about the cases in which secondary evidence relating to document may be given. So basically secondary evidence may be given for the existence or for the content of a document in certain cases, in certain exceptional situations. So there are around 5 to 6 situations under section given under section 65. So the first one is when the original document is shown or appears to be in the possession of person of a person against whom the document is to be proved. मतलब अगर उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी उस पर्सन के पास है जिसके अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट प्रूव होगा, या फिर इफ इट इज इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन हु इज आउट ऑफ द रीच और हु इज नॉट इन द jurisdiction of the process of court. बेसिकली उस पर्सन के पास आपका प्राइमरी एविडेंस है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट की रीच के बियॉन्ड है, या फिर if it is in the possession of any person who is lawfully bound to produce it before the court, but even after giving the notice the person has not produced the document before the court for inspection. अगर इन लोगों के पास अगर प्राइमरी एविडेंस है और मतलब या तो वो उस पर्सन के पास है हु इज आउट ऑफ द रीच ऑफ कोर्ट, या फिर उस पर्सन के पास है जिसके पास ड्यूटी है टू प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट बट इवन आफ्टर द नोटिस वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या फिर इट इज अगेंस्ट द पर्सन, इट इज इन पोजेशन ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the document is to be proved, then in all these three situations secondary evidence may be given. Second point is when the existence of original document is admitted in writing by the person against whom it is to be proved. मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, बेसिकली अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, तो वो अगर ओरिजिनली अगर ये वो अपनी खुद की हैंडराइटिंग में एडमिट कर लेता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कि हाँ हम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मेरे पास, अगर ये वो एडमिट कर लेता है तो उस केस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, क्योंकि दैट डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पार्टी हु हैज एडमिटेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट प्रूव करेंगे तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा, दैट मीन्स कि उसको उसके लिए डैमेजेस पे करना पड़ेंगे. ये जानते हुए भी अगर वो एडमिट कर रहा है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट फिर आपको ऑप्शन देता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज द सेकंड सिचुएशन. The third is when the original document is lost, ठीक है, या destroyed. अगर आपका primary evidence lost हो गया है, destroyed हो गया है, तो उस केस में अगर आप ये proof कर देते हैं before the court, then in that case court will allow you to produce the secondary evidence for the purpose of inspection. The fourth situation is when the original is of such nature that is basically of an immovable nature. Immovable nature से मतलब है कि किसी दीवार पर कोई मतलब किसी ग्राउंड में कोई चीज फिक्स्ड है, या मॉन्यूमेंट या कोई ऐसी पेंटिंग जो फिक्स्ड है दीवार के अंदर, वॉल के अंदर फिक्स्ड है, विच कैन नॉट बी मूव्ड. मतलब वो या अगर उसको मूव करेंगे तो या तो दीवार तोड़नी पड़ेगी या तो फ्रेम टूट जाएगी. देन इन दैट केस दैट मींस दैट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी. सो इफ इट इज एनीथिंग व्हिच इज इमूवेबल and in those cases the secondary evidence can be produced for the same before the inspection, because the primary evidence being that is the original document or original thing
cannot be moved from its place because it is of a nature that is of immovable property. But इसका एक exception है कि merely a notice which is hanged on a nail, merely a notice suspended on a wall by way of a nail will not be considered as immovable, and in those cases the secondary evidence will not be allowed. अगर वॉल पर एक कोई नोटिस टंगा हुआ है तो merely क्योंकि वो सिर्फ एक दीवार पर एक कील से टंगा हुआ है, that will not fall under the situation of section 65 to ask the court to produce secondary evidence. Court in those cases will not allow to produce secondary evidence, because to allow in such cases to produce secondary evidence, court must necessarily be satisfied with the fact that the property is of such nature that it is of immovable. Because in the present case, क्योंकि वो नोटिस सिर्फ एक कील पर टंगा हुआ है, does not make it immovable. तो इसीलिए court will not allow in such cases. So it has to be immovable. Now the fifth point is that when the original is a public document under section 74. सेक्शन 74 हम हमारी लेटर वीडियोस में कवर करेंगे, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो वहां पर डिफाइन किया गया है. तो कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड है आपका, जो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू इशूड होता है, दैट इज कंसिडर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट. तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं. तो ये डॉक्यूमेंट्स की अगर ओरिजिनल कॉपी लॉस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, देन इन दोज केसेस the court allows you to produce a certified copy of the original document as a secondary evidence. Remember this line that आपको certified copy ही produce करनी होगी, आप उसकी duplicate copy produce नहीं कर सकते as a secondary evidence. अगर मेरी 10th की मार्कशीट खो जाती है तो मैं certified copy produce करूंगा, उसकी duplicate copy नहीं, as a secondary evidence. Alright, or else that would not be considered. So that was fifth point under this section. The sixth is when the original consists of numerous accounts and other documents such that which cannot be conveniently examined by the court, and the fact to be proved is general result of whole collection. तो बेसिकली आपको बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मतलब एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल अकाउंट्स, सेवरल डॉक्यूमेंट्स, जिनको मिलाकर एक जनरल कंक्लूजन डिराइव होगा. तो वो सारे अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स को हम कोर्ट के पास प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो उस केस में कोर्ट क्या करता है, एक एक्सपर्ट अपॉइंट करता है, एक स्किल्ड एक्सपर्ट अपॉइंट करता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेजेबल है, नॉलेज रखता है. वो एक्सपर्ट फिर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा और उससे जो भी जनरल रिजल्ट डिराइव हो रहा है उस कंक्लूजन को प्रोड्यूस करेगा बिफोर द कोर्ट. ये बेसिकली डेलीगेशन है कि कोर्ट क्योंकि उन न्यूमरस अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन नहीं कर सकता, तो वो एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करके उस चीज का जनरल रिजल्ट कोर्ट के पास प्रोड्यूस करेगा और कोर्ट उस जनरल रिजल्ट को फिर एज अ सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर करेगा. ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वो इट इज कंसिस्टेड ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स, एंड उन सबको एक साथ एग्जामिन करना जरूरी है सो एज टू अराइव एट द जनरल रिजल्ट ऑफ द सेम. और उनको एग्जामिन कोर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए कोर्ट विल अलाउ द सेकेंडरी एविडेंस बाय वे ऑफ द जनरल रिजल्ट ड्राइव बाय द expert which the court has appointed to examine all those numerous accounts, documents which were in the form of original document. So that was the last point for the purpose of giving secondary evidence. तो हमने क्लियरली समझ लिया कि जनरल रूल ये है कि प्राइमरी एविडेंस आपको देना होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस एज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 65 आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं. अगर डॉक्यूमेंट खो गया है या फिर वो उस पर्सन के पोजीशन में है जो कोर्ट के रीच के बियॉन्ड है, या फिर आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट है और वो खो गया है तो सर्टिफाइड कॉपी अलाउड है आपको प्रोड्यूस करना, या फिर अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो उस केस में आप एक स्किल्ड एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा और वो सबको सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके एक अपनी ओपिनियन देगा जो रिजल्ट उसका अराइव होगा, एंड दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी एविडेंस. So in all these cases, the secondary evidence can be given before the court. This was all about section 64 and section 65. Now in a coming video, we'll talk about section 65A, 65B, जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कि उसको कैसे प्रूव किया जाता है, which is really interesting. तो till the time, bye bye, take care. हम मिलेंगे अगली वीडियो में.